Hello everyone, welcome to the video series for Class 11 Computer Science. In today's video, we are going to discuss one of the steps of solving problem, and we are going to discuss about algorithm. So, let us start the topic. Suppose we want to buy a new dress for us, then what we will do? We have to go to market, we have to search for the particular dress that we want, and after getting that dress, first we have to try it on us, that whether it will be perfectly fit on us or not. And if everything is fine, then what we will do the payment and our shopping will be done. So for this shopping, we have proceed through some steps, and similarly, to solve any problem, if we are following some steps, then those steps are known as algorithm. तो बेसिकली जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो ये एक प्रोसीड्योर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो एल्गोरिदम लिखने के लिए किसी भी रूल्स को हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. दीज आर सम स्टेप्स, सम प्रिसाइजली रिटन स्टेप्स विच आर नीडेड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है कि आपको यही लिखना है फर्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप में ये लिखना है. बट द थिंग इज़, जैसे जैसे हम स्टेप्स लिखते जाते हैं वैसे वैसे हमें सॉल्यूशन के नज़दीक तक पहुंचना है. ओके और एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए. सो देयर इज़ नो पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिदम. So let us discuss what are the different properties of algorithm and how to write algorithm. We will discuss some of the examples in this video tutorial. Okay, so let us start with the properties of algorithm. So while we are writing algorithm, some of the properties are there which are applicable to our algorithm. So very first property is that if we are writing algorithm, then our algorithm must come to a terminating point. Okay, it should be finite, and every steps whatever writing every steps what we are writing must be नियरर टू आवर सॉल्यूशन. जैसे जैसे हम स्टेप्स लिखते जाते हैं वैसे वैसे हम सॉल्यूशन के पास पहुंचते जाएंगे. सो फर्स्ट वन इज़ फाइनाइटनेस, विच मीन्स दैट देयर मस्ट ऑलवेज terminate after a finite number of steps. Okay, it means that after every step one reach closer to solution of the problem. Okay, and after a finite number of steps we must reach to the solution. ऐसा नहीं कि हम स्टेप्स लिखते जा रहे हैं और जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम बैठे थे वो हमें मिला ही नहीं. इट शुड नॉट लाइक दैट. एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए एंड आवर एल्गोरिदम शुड reach to the end point. So the first property of algorithm is its finiteness. Okay, now let us discuss about the second property. Second property means definiteness. What does it mean? It means that I already told you that every step must be precisely written. Then what does it mean? Precisely defined or precisely written. What does it means? इसका मतलब है कि जो भी हम स्टेप लिखते हैं वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. अननेसेसरली वी शुड नॉट राइट एनी स्टेप जिसका कोई मतलब नहीं बनता है. तो हम ऐसे स्टेप्स नहीं लिखेंगे जो जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं हो और जो बेवजह नंबर ऑफ़ स्टेप्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं. हम वैसे ही स्टेप्स लिखेंगे जो हमें सॉल्यूशन के पास तक पहुंचा रहा हो और जो क्लियरली डिफाइन करे हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए. ओके, सो दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी. एंड थर्ड प्रॉपर्टी, इनपुट. सो while writing a solution for any problem, two things are very important again, input as well as output. So let us first talk about input. So any operation, कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो उसकी शुरुआत करने के लिए इट मस्ट हैव सम बिगिनिंग वैल्यू या क्वांटिटीज़ एंड दोज वैल्यूज़ आर नोन एज इनपुट. तो इसके लिए वी मस्ट गिव
correct input to our solution so that we will get the desired output. Okay, so the value which are given to the algorithm before it begins are known as input. अब अगर हम कोई इनपुट अपने एल्गोरिदम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वी हैव टू चेक दैट वॉट एवर आउटपुट वी आर गेटिंग दोज आउटपुट्स आर आवर डिज़ायर्ड आउटपुट और नॉट. ओके, तो जैसे इनपुट एक प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एल्गोरिदम के लिए, वैसे ही जो दूसरी प्रॉपर्टी है एल्गोरिदम की वो है आउटपुट, जो कि एल्गोरिदम पे परफॉर्म होने के बाद जब एल्गोरिदम इनपुट पे परफॉर्म होती है देन वी आर रिसीविंग द आउटपुट. सो हम जब भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट मिले, एक डिज़ायर्ड आउटपुट मिले. ठीक है, एक जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हमारा होता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, उसे ही हम कहते हैं आउटपुट फ्रॉम द एल्गोरिदम. और ये रिज़ल्ट हमें ज़रूरी नहीं कि एल्गोरिदम के एंड में ही मिले, ये एल्गोरिदम के इंटरमीडिएट स्टेजेस पे भी हमें मिल सकते हैं. तो इंटरमीडिएट स्टेजेस पे जो रिज़ल्ट हमें मिलते हैं फाइनली वो कैलकुलेट करके हमें एक फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो इफ़ सम रिज़ल्ट इज़ फ्रॉम द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द ऑपरेशन देन इट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट रिज़ल्ट. और फाइनली जो आउटपुट, जो फाइनल रिज़ल्ट हमें मिलता है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, दैट इज़ नोन एज आवर आउटपुट. ओके, सो this was the fourth important property of algorithm. Till now we have discussed about finiteness, definiteness, input, output. So these all are very important properties. So just I told you that the output expected is always have a specified relation to the inputs. अगर हम specific input दे रहे हैं तो उसके accordingly ही हमें, उससे related ही हमें उसका output मिलता है. ओके, तो एल्गोरिदम लिखने के पहले वी मस्ट हैव टू प्रोवाइड इनपुट और उस इनपुट पे हमारा एल्गोरिदम काम करता है. उसके बाद हमें फाइनली अपना डिज़ायर्ड और अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाना चाहिए. ओके, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ इट्स इफ़ेक्टिवनेस. नाउ इफ़ेक्टिवनेस का मतलब हम सब लोगों को पता है, हाउ इफ़ेक्टिव इज़ आवर एल्गोरिदम. अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट ये एल्गोरिदम जब भी हम डेवलप करेंगे तो क्या होना चाहिए, उसमें बेसिक ऑपरेशंस होने चाहिए. ओके, एक्चुअली ऑपरेशंस शुड बी बेसिक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम actually operations should be basically done so that in finite amount of time we must reach to our solution. Okay, effectiveness means that one, it should not take a lot of time to get our solution. Okay, at a particular amount of time we must get our output. Okay, so these were all about the properties of an algorithm. अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम लिखते कैसे हैं. तो वी विल स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, हाउ टू मेक नूडल्स और हाउ टू मेक मैगी. हम सबको पता है कि नूडल्स बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. तो पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग यूज़ करके देखेंगे कि हाउ टू राइट एल्गोरिदम. तो जैसे हमें पता है कि अगर हमें मैगी बनानी है तो कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है, द वेरी फर्स्ट स्टेज वी विल स्टार्ट द प्रोसेस. ओके, एंड द लास्ट स्टेज वी विल स्टॉप द प्रोसेस. तो स्टार्ट प्रोसेस करेंगे, हम एक पैन में पानी लेंगे, बर्नर पे रखेंगे, गैस पे रखेंगे, गैस ऑन करेंगे. ठीक है, उसमें मैगी मसाला डालेंगे, मैगी डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे थोड़ी देर के लिए, गैस ऑफ करेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे. तो हम सबको पता है कि ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, बट लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है. द वे ऑफ राइटिंग मे बी डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सो as I told you previously that there is no set of rules for writing algorithm. हमें बस ये ध्यान रखना कि हम जितने भी स्टेप्स लिख रहे हैं क्या वो हमारे एल्गोरिदम के लिए ज़रूरी हैं या नहीं, और दूसरा ये
कि क्या वो हमें हमारे सॉल्यूशन तक पहुंचा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ को अभी डिस्कस किया है वो सारे प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रख के ही हमें एल्गोरिदम लिखनी होती है। तो आप सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे बट अननेसेसरी आप कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखने की कोशिश हम नहीं करेंगे। तो इट वॉज जस्ट अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। नाउ वी विल सी अनदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो जो नॉर्मली हमारे सिलेबस से रिलेटेड होंगे। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि सपोज़ वी वांट टू प्रिंट अ मैसेज, देन व्हाट स्टेप्स वी हैव टू राइट। ओके, सपोज़ एक हम मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। अब अगर मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमें फ़िलहाल इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी इनपुट की ज़रूरत नहीं है। वी वांट टू गेट अ डिस्प्ले मैसेज ओनली हेलो वर्ल्ड। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट, वी विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड वी विल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई इनपुट की ज़रूरत है ही नहीं, एंड वी विल गेट आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। सो दिस वॉज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। वी विल डिस्कस अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो दूसरे एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि वी विल स्टार्ट विथ, सपोज वी हैव टू go through some decision making technique, and suppose we have to follow some steps again and again, then in those cases how to write steps. Okay, so first of all let us start with the simple example that what to write if we want to print area of rectangle. Now we know that for calculating area of rectangle हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेंथ और ब्रेड की। तो इस बार जो हमारा इनपुट होगा वो क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेड। तो पहले हमने फर्स्ट स्टेप में हमने स्टार्ट किया, सेकेंड स्टेप में हमने इनपुट मांगा, और इनपुट क्या है हमारा, टेक लेंथ एंड ब्रेड। अब मैंने यहाँ लिखा टेक लेंथ एंड ब्रेड, इसको आप कुछ भी ले सकते हो, इनपुट लेंथ एंड ब्रेड, एंटर लेंथ एंड ब्रेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब एरिया कैलकुलेट करने का आप फॉर्मूला डाल दो, एरिया प्रिंट कर दो एंड स्टॉप। सो आवर एल्गोरिदम इज डन फॉर प्रिंटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, we have taken input, we have done calculation, we have printed our area, and last step is stop. So we will get the area of rectangle. Okay, now we will discuss that here we have to follow each and every steps. So these types of algorithm are known as sequential algorithm. Okay, next we will discuss that selection algorithm. It means what, that all the steps are not going to be executed. पहले वाले में क्या था कि हर स्टेप एक के बाद एक सीक्वेंस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता जा रहा था, बट अब हम एक सिचुएशन पे पहुंचेंगे जहाँ पे या तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन है कि एल्गोरिदम लिखनी है कि क्या कोई पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो हमें पता है कि अगर उस पर्सन का एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होगा तभी वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा। तो हमने स्टार्ट किया, यूज़र से कहा वो अपना एज एंटर करे। अब हमने क्या करना है, हमें चेक करना है कि वो एज जो है वो 18 से ग्रेटर या उसके बराबर है या नहीं। अगर है तो हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, एलिजिबल टू वोट, और स्टॉप कर देंगे। अगर नहीं है तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, एंड देन वी शुड स्टॉप। तो इस बार हमारे पास दो सिचुएशन है, या तो पर्सन एलिजिबल फॉर वोट होगा या तो नॉट एलिजिबल टू वोट होगा। तो इस टाइप के एल्गोरिदम को हम करते हैं सिलेक्शन एल्गोरिदम प्रोसीड्योर। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे स्टेप्स कभी भी फॉलो नहीं होंगे, या तो स्टेप नंबर 4 फॉलो होगा या तो स्टेप नंबर 5 फॉलो होगा। बट 4 फॉलो हो या 5 फॉलो हो, हमें स्टॉप पे आना ही है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने स्टेप्स को यहाँ पे लिखा है कि अगर स्टेप 4 भी हुआ तो 4 होने के बाद स्टेप 6 यानी स्टॉप पोजीशन तक हमें पहुँचना है, और अगर स्टेप 5 फॉलो हुआ तो स्टेप 5 का फॉलोइंग स्टेटमेंट तो खुद ही स्टॉप है। ओके, अब थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल और आगे हम बढ़ाते हैं और हम पहुंचते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, जहाँ पे है राइट एन एल्गोरिदम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो सबसे पहले हमें इसमें इनपुट चाहिए। इनपुट क्या चाहिए, हमें पता करना है कि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो सबसे पहले हम नंबर इनपुट करवा लेंगे, क्योंकि इस बार इनपुट क्या है, हमारा नंबर है। अब हमारे पास 3 रास्ते हैं, या तो वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो ज़ीरो हो सकता है।
तो हमको वो पता है कि हम कौन से कंडीशन पे किसी नंबर को पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो डिक्लेयर करते हैं। अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, अगर नंबर ज़ीरो से छोटा है तो वो नेगेटिव है, और अगर वो ना तो बड़ा है ना तो छोटा है तो वो अंडरस्टूड है कि वो ज़ीरो ही होगा। तो हमने पहले स्टार्ट किया, नंबर को इनपुट किया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव होंगे, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा नंबर ज़ीरो से बड़ा है या नहीं। अगर ज़ीरो से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रिंट करवाने के बाद उसको स्टॉप वाले स्टेप तक ले जाएंगे। अगर हमारा नंबर निगेटिव है, मतलब ज़ीरो से छोटा है, तो हम प्रिंट करवाएंगे कि नंबर इज़ निगेटिव और उसको स्टॉप वाले स्टेप तक ले जाएंगे। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, मतलब नंबर क्या है हमारा, ज़ीरो है, तो ज़ीरो के बाद उसका फॉलोइंग स्टेप ही हमारा रहेगा स्टॉप स्टेप। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है हमारे लिए लिखना। हमें ध्यान में रखना है कि हमें टर्मिनेट अपने एल्गोरिदम को ज़रूर करना है। अगर पॉजिटिव हो तो भी स्टॉप पोजीशन तक लाना है, नेगेटिव हो तो भी स्टॉप पोजीशन तक लाना है, और ज़ीरो के बाद जो फॉलोइंग स्टेप है वो तो स्टॉप स्टेप है ही। तो इसके लिए हमें कोई अलग से गो टू स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे एल्गोरिदम के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ like it, share it and subscribe it. Thank you for watching. Thank you very much.